Auf dem Foto sehe ich eine Frau und ein Büro. जो भी दिख रहा है आपको, सबसे पहला सेंटेंस यही होना चाहिए, sehe ich eine Frau। उसके बाद में उसका नाम बोलना है कि फोटो में एक लेडी दिख रही है, sie ist Verena Bachmann, या फिर sie heißt Verena Bachmann, उसका नाम वेरेना बाखमान है, उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो। Ich kann auch ihre Visitenkarte sehen, मैं उसका विजिटिंग कार्ड भी देख सकता हूँ। Sie führt ein Übersetzungsbüro, Übersetzungsbüro का मतलब ट्रांसलेशन ऑफिस, लिखा है ना इसके आर्ट के नीचे। Und Sprachenservice, लैंग्वेज सर्विस। सो मेरे को फोटो में एक लेडी दिख रही है जिसका नाम वेरेना बाखमान है, और वो क्या है प्रोफेशन से, sie ist dann Übersetzerin, या फिर sie führt Übersetzungsbüro und Sprachenservice। führen का मतलब है चलाना, sie runs führen, ich führe das Institut, मैं ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो führen ये वर्ड यूज कर सकते हो आप, führen। Und das Büro ist in Deutschland, ये जो ऑफिस है ये जर्मनी में है। Hier sieht man auch die Adresse, Jena ist in Deutschland, उसका ऑफिस जर्मनी में है। अब ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बोल सकते हैं हम लोग। Das Büro ist klein, aber sieht gut aus। ऑफिस छोटा तो है लेकिन सुंदर दिख रहा है। Aussehen, das ist ihr Büro, this is her office। Das Büro ist klein, aber es sieht gut aus, it looks good। aussehen का मतलब है to look। अब ऑफिस में आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे आप लोगों ने ट्राई भी किया, अच्छा एस गिफ्ट, वो हमको एस गिफ्ट से बोलना है, देयर इज एस गिफ्ट। कई सारे फोल्डर है, एस गिफ्ट फील है ऑर्डर इंडियन ब्यूरो। शुरू में एस गिफ्ट लगाओ, यहां पे चीज का नाम लिख दो, और लास्ट में इन ब्यूरो या फिर इंडियन ब्यूरो ऑफिस में। Es gibt einen Drucker und ein Telefon im Büro, ऑफिस में। there are। Ich sehe auch Kaffeetasse, die Tasche liegt auf dem Schreibtisch। कौन सी चीज कहां पे है, ऐसे कह सकते हो। Tasche liegt या फिर ist auf dem Schreibtisch। Es gibt auch, दो बार es gibt से बोल दिया तो तीसरी बार auch लगा दिया। Es gibt auch viele Bücher im Schrank und auch einen Kalender an der Wand। An der Wand, it is on the wall। Yeah, Kalender on der Wand। जब भी आप कोई फोटो के बारे में बोलोगे तो प्रीपोजिशन, टू वे प्रीपोजिशन में भी दाटिव लेंगी, क्योंकि वो वहां है, आधा तो नहीं। Es gibt Tastatur und einen Blumentopf, गमला पड़ा है। Die Frau sieht glücklich aus, खुश लग रही है लेडी। Sie ist froh, dass sie
eigenes Büro hat, वो खुश है कि उसका खुद का ऑफिस है। Die Frau sieht glücklich aus। seems sieht मतलब दिखना, appears ये दोनों एक साथ है, aussehen। sieht glücklich aus। Sie ist froh। Sie muss hart arbeiten। टेक्स्ट पढ़ा होगा तो बहुत काम करती है। क्या क्या काम करती है वो भी बता सकते हो आपने अगर टेक्स्ट पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो सबसे पहले टीचर का काम किया था, राइट। जी hart am Anfang, am Anfang का मतलब है in the beginning, am Anfang, am Anfang। Sie hat am Anfang als Lehrerin gearbeitet, aber das brachte ihr nicht genug Geld। Sie hatte nicht also genug Termine und dann hat sie mit Sprachenservice angefangen। Sie started language service। Jetzt ist sie, ja sie ist jetzt also zufrieden। Sie ist zufrieden। Dass sie sich selbstständig gemacht hat, dass sie ja फिर eigenes Büro hat। Büro hat। So बहुत बड़ा भी नहीं बोले अपन, लेकिन ये auf dem Foto sehe ich, auf dem Bild sehe ich, es gibt and two-way preposition, ऐसे करके आपको सेंटेंस तो बनाने पड़ेंगे कुछ। Verena Bachmann hat in der Schule Russisch und Latein gelernt। अगर ये आपने पढ़ रखा है तो ये बता सकते हो आप, ठीक है। Latein gelernt। Sie hat Englisch, Spanisch und Germanistik in Rostock studiert। Vor 2 Jahren hat sie auch noch ihr Masterstudium in Jena in Deutsch als Fremdsprache abgeschlossen, completed। Zuerst wollte sie als Lehrerin arbeiten, aber dann hat sie nicht also so weiter। सर ये टेस्ट का नाम है या फिर वैसे ही है Deutsch als Fremdsprache? Deutsch als Fremdsprache का मतलब है German as a foreign language। हाँ ये टेस्ट भी होता है सेम, टेस्ट DAF वाला। हाँ वो तो B1 A1 B1 होता ही है ना। तो Deutsch als Fremdsprache का मतलब है German as a foreign language। German as a foreign language का मतलब है इसने जर्मन इसकी मदर टंग नहीं है तो सीखी है, इसने सीखी है ऐसे। als abgeschlossen, sie hat completed। Zuerst wollte sie als Lehrerin as a teacher काम करना चाहती थी, aber man hat keinen Urlaub und bei Krankheit bekommt kein Geld। उसने देखा इसमें छुट्टियां भी कम मिलती हैं, पैसा भी कम मिलता है। Dann hatte Frau Bachmann eine Geschäftsidee, denn sie hatte Business Idea। Viele Menschen arbeiten mit Texten und internationalen Kontakt haben sie। So ये सारी इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। Sie hat einen Sprachenservice gegründet। Sie established, gründen का मतलब establish करना, start करी ये Angebot and what she is doing, what is her offer, क्या करती है लोगों के लिए। Formelle Briefe schreiben, Übersetzungen, Russisch, Spanisch, Englisch oder Deutsch und Masterarbeiten korrigieren für Studierenden an der Universitäten und Hochschulen। ऐसे कि ये सब लोगों को जरूरत पड़ती है कि फॉर्मल लेटर्स लिखने पड़ते हैं। छोटी छोटी कंपनियां विदेशों में बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट करना चाहती हैं तो कैसे करेंगी, फोन करो, टेलीफोन करो या मेल लिखो, तो किसी से तो लिखवाना पड़ेगा अगर आपको नहीं आती तो उनके लिए इसने काम करना शुरू किया। ट्रांसलेशन इन सब्जेक्ट्स में, इन लैंग्वेजेस में करना शुरू किया। फिर जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर आर्बाइटन जो एमए कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो अपनी थीसिस सबमिट करने से पहले चेक करवाना चाहते हैं कि स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक तो नहीं है या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखवाना चाहें तो वो हेल्प करती है करेक्ट करने में उनको। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स इन वाइमार एरफुर्ट und Jena, वाइमार एरफुर्ट und Jena में ये एक तरह से अपनी सर्विस करती है, कैटर करती है क्योंकि ये पास you know, right। Es macht ihr Spaß und sie sagt
dass sie dabei sehr viel lernt because she is learning a lot. इतनी सारी लोगों को हैंडल करना, इतनी सारी चीजें करना. Immer mehr kleine Firmen arbeiten jetzt mit Firmen im Ausland zusammen. छोटी-छोटी कंपनियां विदेश की बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ आकर काम करती है. Und da braucht man also Fremdsprache-Kenntnisse, Foreign Language की Knowledge होनी चाहिए. Manchmal übersetzt Verena auf einer Messe und schreibt Informationen, Broschüren, ब्रोशर्स भी बनाने पड़ते हैं. मान लो कोई ब्रोशर लिखा, एक ब्रोशर है मेरे पास, तो किसी न किसी लैंग्वेज में तो होगा, मेरे को बनवाना है, तो इंग्लिश में है ये, तो मेरे को अगर जर्मनी आती है केवल तो किसी और से बनवाऊंगा मैं. तो ऐसे वो लोगों के ब्रोशर वगैरह और डिजाइनिंग के लिए उसने आदमी रखा हुआ है, एक पर्सन रखा हुआ है डिजाइनिंग के लिए. तो वो कह रही है कि अभी वो हेल्प ले लेती है. और आजकल एक सिनेजीशियन Mitarbeiter in Chinese वर्कर भी रखा हुआ है उसने. Es gibt auch Fragen nach Rumänisch, also Romanian and Lettisch. मतलब लाटविया की लैंग्वेज है लेटिश. लाटविया एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में. Übersetzungen, dann tauscht Frau Bachmann die Aufträge mit anderen Servicebüros. तो उसका एक छोटा सा ऑफिस है, ऐसे और लोगों के भी छोटे-छोटे ऑफिस है. तो वो सारी लैंग्वेज तो नहीं ऑफर कर सकती क्योंकि इतने लोगों को रखना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए काम भी इतना नहीं आता. तो कम काम आता है वो दूसरों को दे देते हैं और वो लोग इसको दे देते हैं. ऐसे करके इसका काम चल रहा है बढ़िया. Und jetzt sagt sie findet es richtig, dass sie selbstständig gemacht hat, कि उसने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया. इस बात से बहुत खुश है वो. aber sie muss viel arbeiten, काम बहुत करना पड़ता है. verdient nicht viel Geld, अभी इतने पैसे भी नहीं कमाने लगी. hat selten Urlaub, छुट्टियां अभी भी नहीं है. und nie richtig Feierabend, और कभी भी शाम को एक टाइम से फ्री नहीं होती. पहले तो किसी और के काम करते हो तो 9 से 5 फिक्स है, 5 बजे फ्री हो आप, और यहाँ तो आप और लेट तक कर रहे हो आप. so aber ich bin mein eigener Chef, sagt sie, das ist der Unterschied. मैं अपनी खुद की बॉस हूँ, ये डिफरेंस है. ऐसे करके das ist dann der Text. Verena Bachmann. ओके. जो जब लैंग्वेज आपको नहीं आती तो एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है बीच में, है ना. यूवर्जित्सर या इंटरप्रेटर, डॉल्मेट्सर बोलते हैं उसको. जो बोल के ट्रांसलेशन करता है उसको डॉल्मेट्सर बोलते हैं, और लिख के करता है उसको यूवर्जित्सर. ठीक है. डॉल्मेट्सर को ही इंटरप्रेटर बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है. ये डॉल्मेट्सर, ये आपस में बात कर रहे हैं, ये बंदा मदद कर रहा है इनकी. जैसे Sie gehen mit Ihrer Freundin in Deutschland. You are going with your friend in Germany to Doctor, zum Arzt. Ihre Freundin spricht kein Deutsch, और आपकी फ्रेंड तो जर्मन बोलती नहीं. Sie übersetzen im Gespräch. You are translating that, interpreting that. Was fehlt Ihnen? Was fehlt Ihnen? डॉक्टर ने पूछा was fehlt Ihnen. अब आपकी फ्रेंड जिसको प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है. was fehlt Ihnen. तो वो बोलना चाहिए आप लिख के डॉक्टर को दे दो. तो फिर बीच में जो भी इंटरप्रेटर है वो बताएगा इसको कि was fehlt Ihnen का मतलब है आपको समस्या क्या है. तो फिर आप कहोगे, वो कहेगी कि बाकी ठीक है, पेट में दर्द है. तो आप उसको तो कह नहीं सकते पेट में दर्द है. तो फिर आप बताओगे Sie hat Bauchschmerzen. ओके. ऐसे वो बता रहे कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कैसे कैसे ये होता है. ओके. was war noch? Was hatten wir noch? 8 und 6 ist gleich. 8 und 6.